Hello students, good morning. Welcome to SS Online Classes. Students, we have completed chapter 4 nouns of our English language book Cornerstone in our last video. And today we are going to start our new chapter of our English language book Cornerstone. And the number of this new chapter is chapter 5. And the name of this chapter 5 is singular and plural. Okay, so students, today we will read chapter 5 singular and plural in our today's class. And included in chapter 5 we will read about singular and plural. And we will read some rules to change singular to plural noun. And we will also read and solve exercise O, which is page number 21 of this chapter 5 in our English language book Cornerstone in our today's class. Okay, so all students, please pay partial attention to class and listen to my words clearly, because today we are going to read about singular and plural noun. Okay, so all students, look at the page number 21. Okay, let's see chapter 5. Chapter number is chapter 5 and the name of this chapter 5 is singular and plural. Singular means students single, it's mean ekvachan, and means or, plural means bahuvachan. Okay, singular and plural it's mean ekvachan or bahuvachan. Students, singular can include only one thing, one person, one place, one animal या one bird आता है, clear? तो and student plural can include more than one person, more than one things, more than one places, more than one animals, more than one birds आते हैं, clear? तो singular means होते हैं one, सिर्फ एक, and plural means होते हैं many, अनेक, okay? तो स्टूडेंट सिंगुलर एंड प्लूरल इट्स मीन एक वचन और बहुवचन. ओके, इट्स अवर टुडेज टॉपिक. आज हमारा आज का टॉपिक है. लेट्स से एक्सरसाइज हो स्टूडेंट्स. और एक्सरसाइज हो इज सर्कल दी सिंगुलर नाउन्स इन ग्रीन एंड दी प्लूरल नाउन्स इन रेड. ओके, सर्कल मीन्स गोला करिए. दी सिंगुलर नाउन्स मीन्स एक वचन संज्ञाओं, इन मीन्स में, ग्रीन मीन्स हरा एंड मीन्स और. दी प्लूरल नाउन्स मीन्स बहुवचन संज्ञाओं, इन मीन्स में, रेड मीन्स लाल. ओके, सर्कल दी सिंगुलर नाउन्स इन ग्रीन एंड दी प्लूरल नाउन्स इन रेड. इट्स मीन कि एक वचन संज्ञाओं को हरे रंग से गोला करिए और बहुवचन संज्ञाओं को लाल रंग से गोला करिए. ओके, सो स्टूडेंट्स, इन दिस एक्सरसाइज अवर वर्क इज़ दैट, हमारा वर्क है कि जो हमारे सिंगुलर नाउन्स होंगे, जो एक वचन संज्ञा होंगे, जो ओनली वन थिंग, वन पर्सन, वन प्लेस, वन एनिमल या वन बर्ड होगा, तो उस पर हमें ग्रीन कलर से सर्कल करना है. और जो हमारे प्लूरल नाउन्स होंगे, बहुवचन संज्ञा होंगे, इट्स मीन मोर देन वन थिंग होगी, मोर देन वन प्लेस होंगे, या मोर देन वन एनिमल होगा, या मोर देन वन बर्ड्स होंगे, तो उस पर हमें रेड कलर से सर्कल करना है. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड दिस पैसेज. Johnny and Billy Bushytail were two little squirrels. Okay, तो Johnny, okay, and means और, Billy Bushytail, were means थे, two means दो, little means छोटी, squirrels, squirrels means गिलहरियाँ. Okay, Johnny and Billy Bushytail were two little squirrels. It's mean Johnny और Billy Bushytail दो छोटी गिलहरियाँ थी. Clear? So students, in this first number line, Johnny, it's a squirrel name. Okay, and Billy Bushytail it's other squirrel name. Okay, तो both are singular nouns, दोनों singular nouns है. Okay, so students, draw circle around these words Johnny and Billy Bushytail with green color because both are singular nouns. Clear? Let's see students. But students, in this first number sentence, Johnny and Billy Bushytail were two little squirrels. Squirrels it's your प्लूरल नाउन. स्क्वायरल्स आपका प्लूरल नाउन है, गिलहरियाँ. ओके, मोर देन वन स्क्वायरल है, टू स्क्वायरल है ना. जॉनी एंड बिली बुसिटल, टू स्क्वायरल ना, तो मोर देन वन हुई ना, तो स्क्वायरल्स इट्स योर प्लूरल नाउन. सो स्टूडेंट्स, ड्रॉ सर्कल अराउंड दिस वर्ड स्क्वायरल्स विद रेड कलर बिकॉज इट्स अ प्लूरल नाउन. क्लियर? लेट्स सी second number sentence. They lived with their grandparents in a nest on a tall tree. Okay, they means वे lived means रहते थे, with means साथ में, their means अपने grandparents means दादा दादी. Okay, इन मीन्स में, आ मीन्स एक, नेस्ट मीन्स घोंसला, ऑन मीन्स पर, आ मीन्स एक, टॉल ट्री. ओके, इट्स मीन ऊंचा पेड़. क्लियर? दे लिव्ड विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स इन अ नेस्ट ऑन अ टॉल ट्री. ओके, इट्स मीन कि वे अपने दादा और दादी के साथ एक ऊंचे पेड़ पर रहते थे. ओके, वे अपने दादा दादी के साथ एक घोंसले में, ओके, एक घोंसले में एक ऊंचे पेड़ पर रहते थे. ओके, वी कैन से दैट वे अपने दादा और दादी के साथ एक ऊंचे पेड़ पर एक घोंसले में रहते थे. ओके, तो स्टूडेंट्स, इन दिस सेकेंड नंबर सेंटेंस, ग्रैंड पेरेंट इट्स मीन दादा और दादी, इट्स योर प्लूरल नाउन. ओके, सो स्टूडेंट्स, ड्रॉ सर्कल अराउंड दिस वर्ड ग्रैंड पेरेंट्स बिकॉज इट्स योर प्लूरल नाउन्स. ओके, क्योंकि आपका प्लूरल नाउन है. ओके, तो रेड कलर से सर्कल करिएगा. क्लियर? ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स दादा और दादी, तो दादा और दादी टू पर्सन हो गए ना, मोर देन वन पर्सन है, तो स्टूडेंट इट्स योर प्लूरल नाउन. सो ऑल स्टूडेंट्स, draw circle around this word grandparents with red color. And students, nest it's mean घोंसला. ओके, आ नेस्ट है ना, इट्स मीन एक घोंसला, तो इट्स अ सिंगुलर नाउन. सिंगुलर नाउन है, तो स्टूडेंट ड्रॉ सर्कल अराउंड दिस वर्ड नेस्ट विद ग्रीन कलर. एंड अ टॉल ट्री इट्स मीन एक ऊंचा पेड़. ओके, तो इट्स अ सिंगुलर नाउन. सो स्टूडेंट्स, ड्रॉ सर्कल अराउंड दिस वर्ड ट्री विद ग्रीन कलर. ओके, ड्रॉ सर्कल अराउंड दिस वर्ड ट्री विद ग्रीन कलर. ग्रीन कलर से नेस्ट पे और ट्री पे सर्कल कर लीजिए बिकॉज नेस्ट और ट्री बोथ आर योर सिंगुलर नाउन्स. क्लियर? लेट्स सी नेक्स्ट लाइन. वन डे इट्स मीन एक दिन. दे वेंट फॉर अ वॉक विद दियर कजिन जिनी. ओके, वन डे मीन्स एक दिन, दे मीन्स वे, वेंट मीन्स गए, वेंट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ गो, गो मीन्स जाना, वेंट मीन्स गए.
फॉर मीन्स के लिए, आ मीन्स एक, वॉक मीन्स टहलना, विद मीन्स साथ में, डियर मीन्स अपने, कजिन, कजिन मीन्स होते हैं चचेरा या ममेरा, भाई या बहन, ओके, कजिन मीन्स चचेरा ममेरा, ओके, जी नहीं, ओके। तो एक दिन वे अपने एक दिन वे अपने कजिन, इट्स मीन अपने चचेरे या ममेरे भाई या बहन जिनी के साथ टहलने गए, ओके। तो स्टूडेंट्स हियर वी यूज दे फॉर जॉनी एंड बिली बुसिटेल, जॉनी और बिली बुसिटेल के लिए यहाँ पे दे का यूज़ किया गया, ओके। तो एक दिन वे, इट्स मीन जॉनी और बिली बुसिटेल अपने कजिन, इट्स अपने चचेरे या ममेरे भाई या बहन के साथ, जिसका नेम क्या था, इनके कजिन का नेम क्या था, जेनी था, ओके, टहलने के लिए गए। तो स्टूडेंट्स इन दिस सेंटेंस डे इट्स अ सिंगुलर वर्ड, ओके, डे मीन्स दिन, वन डे ना, इट्स मीन एक दिन, तो इट्स अ सिंगुलर वर्ड। सो स्टूडेंट्स ड्रॉ सर्कल अराउंड दिस वर्ड डे विथ ग्रीन कलर बिकॉज इट्स अ सिंगुलर वर्ड। एंड स्टूडेंट वॉक इट्स आल्सो अ सिंगुलर वर्ड, ओके, आ वॉक है ना, तो ओके, तो आ वॉक है, तो स्टूडेंट्स ड्रॉ सर्कल अराउंड दिस वर्ड वॉक विथ ग्रीन कलर। एंड कजिन, कजिन इट्स अ सिंगुलर वर्ड, ओके, तो स्टूडेंट्स ड्रॉ सर्कल अराउंड दिस वर्ड कजिन विथ ग्रीन कलर। एंड जीनी, it's one squirrel name, okay, so students it's a singular noun, so students draw a circle around this word Jenny with green color, clear? So students day, walk, cousin, Jenny, all these words you singular nouns, so students draw a circle around these words with green color, clear? They admired the green leaves of their home, okay, they means we admired, here the meaning of admired means students होता है प्रशंसा करना, okay, तो एडमायर द सेकंड फॉर्म ऑफ एडमायर मीन्स प्रशंसा की, एडमायर मीन्स प्रशंसा करना एंड एडमायर्ड मीन्स प्रशंसा की, ओके। तो दे एडमायर्ड इट्स उन्होंने प्रशंसा की, दी ग्रीन मीन्स हरी, लीव्स मीन्स पत्तियों, ऑफ मीन्स का, डियर मीन्स अपने, होम मीन्स घर, ओके। तो इट्स मीन कि उन्होंने अपने घर की हरी पत्तियों की प्रशंसा की, ओके। सो स्टूडेंट्स लीव्स इट्स अ प्लूरल नाउन, ओके, प्लूरल नाउन इज स्टूडेंट ड्रॉ सर्कल अराउंड दिस वर्ड लीव्स विथ रेड कलर। एंड स्टूडेंट होम इट्स मीन घर, it's a singular word, so student draw circle around this word home with green color, clear? Then they spotted some ducks swimming in a pond, okay, that means the, they means we, spotted, okay, spotted some ducks means students कुछ बतखे, okay, and spotted means देखा, swimming means तैरते हुए, in means में, a pond means एक तालाब, then they spotted some ducks swimming in a pond, it's mean कि तब उन्होंने कुछ बतखों को एक तालाब में तैरते देखा, ओके। सो स्टूडेंट्स इन दिस सेंटेंस ducks it's a plural word, okay, so students it's a plural noun, so draw circle around this word ducks with red color. And some pond, a pond in it's mean ek talab, so students it's a singular word, so students draw circle around this word pond with green color. And Johnny it's also a singular word, okay, because it's a one squirrel name, so students draw circle around this word Johnny with green color, okay। तो स्टूडेंट्स देन दे स्पॉटेड सम डक स्विमिंग इन अ पॉन्ड, इट्स मीन तब उन्होंने कि कुछ बतखों को एक तालाब में तैरते देखा, तो डक्स आपका प्लूरल नाउन है, तो उस पर रेड कलर से सर्कल कर लीजिए। एंड पॉन्ड इट्स योर सिंगुलर नाउन, सो ड्रॉ सर्कल अराउंड दिस वर्ड पॉन्ड विद ग्रीन कलर, क्लियर? लेट्स सी, Johnny was irritated as flies kept sitting on his nose, okay, तो इट्स मीन कि जॉनी वाज मीन्स थी, इरिटेटेड मीन्स चिड़ना, चिड़ गई, ओके, एज मीन्स क्योंकि, फ्लाइज मीन्स मक्खियाँ, ओके, कैप्ट सिटिंग मीन्स बैठ रही थी, ऑन मीन्स पर, हिज नोज मीन्स उसकी नाक, ओके, इट्स मीन कि जॉनी जो थी, ओके, तो स्टूडेंट्स जो जॉनी थी, तो जॉनी चिड़ गई क्योंकि मक्खियाँ उसकी नाक पर, उसकी नोज़ पर बैठ रही थी, ओके। तो जो स्क्वायरल थी और जॉनी, तो वो चिढ़ रही थी, इरिटेट हो रही थी कि जो फ्लाइज थी, मक्खियाँ थी, वो उसकी नोज़ पर बैठ रही थी, क्लियर? सो स्टूडेंट्स इन दिस सेंटेंस जॉनी इट्स योर सिंगुलर वर्ड, सो स्टूडेंट ड्रॉ सर्कल अराउंड दिस वर्ड जॉनी विथ ग्रीन कलर, okay, flies set in makkya, it's a plural noun, okay, so student draw circle around this word flies with red color, okay. And students nose it's a singular word, so draw circle around this word nose with green color, okay. And let's see, at least they are not bugs that bite, said Jeannie, okay, at least means कम से कम, they means we are not bugs, okay, are not bugs means कीड़े नहीं है, clear? bugs means होता है कीड़े, that means जो bite means काटे, sad means कहा, Jeannie, okay। तो एट लीस्ट दे आर नॉट बग्स दैट बाइट, सेट जीनी, इट्स मीन कि कम से कम वे कीड़े तो नहीं है जो काटते हैं, ओके। तो जीनी ने कहा कि कम से कम वे कीड़े तो नहीं है जो काटते हैं, क्लियर? सिस्टम इन दिस सेंटेंस बग्स इट्स मीन कीड़े, इट्स अ प्लूरल नाउन, सिस्टम ड्रॉ सर्कल अराउंड दिस वर्ड बग्स बिकॉज इट्स अ plural noun, clear? And system draw circle around this word bugs with red color, clear? And genie it's a singular noun, system draw circle around this word genie with green color, clear? So students in this exercise, oh, your singular words which we have circled with green color, your singular words are Johnny, okay, Billy Bussytail, and tree, nest, day, and walk, cousin, genie, home, pond, Johnny, nose, genie, clear?
and students your plural nouns which we have circled with red color. So students your plural nouns are squirrels, okay, leaves, ducks, grandparents, flies, bugs. Clear? So students, we have read this exercise and I hope you must have understood this exercise. You have no problem in any singular noun and plural noun of this exercise. Okay, so let's see. We have learnt about singular and plural nouns. Okay, तो हम एक वचन संज्ञा और बहुवचन संज्ञा के बारे में, एक वचन संज्ञा और बहुवचन संज्ञाओं के बारे में याद कर चुके हैं, सीख चुके हैं. वी नो दैट अ नाउन दैट स्टैंड्स फॉर वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज in the singular number, and a noun that stands for more than one person, animal, place or thing is in the plural number. Okay, it's mean we can say that कि हम जानते हैं कि जिस संज्ञा से एक व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध होता है वह एक वचन संख्या में होती है, वन नंबर में होती है. ओके, और जिस संज्ञा से एक से अधिक व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध होता है, ओके, तो वो हमारे प्लूरल होते हैं, वो बहुवचन होते हैं. ओके, सो वी कैन टू से दैट कि हम जानते हैं कि जिस संज्ञा से, जिस नाउन से एक व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध होता है वह एक वचन या वी कैन से एक संख्या में होती है, और जिस संख्या से एक से अधिक व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध होता है, ओके, तो बोध होता है तो वह हमारी बहुवचन संख्या में होती है. ओके, वो हमारी बहुवचन संख्या में होती है, बहुवचन हमारे नंबर होते हैं. क्लियर? तो स्टूडेंट्स, अगर कोई चीज़ वन है, ओनली वन पर्सन, वन थिंग, वन प्लेस या वन एनिमल, वन बर्ड की बात करते हैं तो वो सिंगुलर होता है, एक वचन होता है. बट अगर मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन एनिमल, मोर देन वन प्लेस या मोर देन वन थिंग की जब भी हम बात करते हैं तो वो हमारा प्लूरल नंबर होता है, बहुवचन संख्या होता है. ओके, अ सिंगुलर नाउन कैन बी चेंज्ड टू अ प्लूरल नाउन बाय एडिंग एंड एज फॉर एग्जाम्पल ग्रैंड पेरेंट्स एंड बग्स. ओके, तो इट्स मीन कि एक वचन संज्ञा को बहुवचन में उस वर्ड के एंड में एस को ऐड करके उसे हम बदल सकते हैं. ओके, वी कैन से दैट कि अ सिंगुलर नाउन, ओके, एक वचन संख्या कैन बी चेंज, बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, टू अ प्लूरल नाउन मीन्स बहुवचन संख्या में बाय एडिंग एन एस. इट्स मीन एक एस को जोड़ने के द्वारा. ओके, वी कैन टू से दैट कि एक वचन संज्ञा के अंत में एक एस को जोड़कर हम उसे प्लूरल में, इट्स इन बहुवचन संज्ञा में बदल सकते हैं. फॉर एग्जांपल ग्रैंड पेरेंट्स. ओके, तो ग्रैंड पेरेंट में स्टूडेंट होता है दादा या तो दादी. ओके, और तो ग्रैंड पेरेंट्स अ सिंगुलर वर्ड. बट स्टूडेंट्स, when we have as in the end of the given word grandparent, then our word become grandparents. Okay, it means dada or dadi, it's our plural word. Clear? And means or bug, it's our singular word, it means kida. Okay, and since when we have add to as in the end of this given word bug, then our word become bugs, it means kide. Clear? So grandparents and bugs both are plural nouns. Okay, and we have changed these singular noun grandparent and bug into plural nouns grandparents and bugs by add and as in the end of given words. Okay, तो दिए हुए शब्दों, जो दिए हुए वर्ड है हमारे ग्रैंडपेरेंट और बग, इनके एंड में हमने एस को ऐड करके इन्हें हमने प्लूरल में चेंज किया. क्लियर? लेट्स से सेकेंड नंबर रूल. नाउन्स एंडिंग इन एस, एसएस, एसेट, सीएच एंड एक्स फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग ES. For example, buses, classes, buses, watches and boxes. Okay, it's mean कि संज्ञाएं जो एस, एस एस, एस एच, सी एच और एक्स के साथ समाप्त होती है. ओके, तो ऐसे नाउन्स, ऐसी संज्ञाएं जो इन लेटर से, जिनका एंड होता है एस, एस एस, एस एच, सी एच या एक्स लेटर से जिनका एंड होता है, तो उनके एंड में हम ई एस को ऐड करके उन्हें प्लूरल में चेंज कर सकते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल में उदाहरण के लिए बसेस, इट्स मीन बसें. क्लियर? ग्लासेस, इट्स मीन ग्लासें. ब्रशेस, इट्स मीन झाड़ियाँ. वॉचेस, इट्स मीन घड़ियाँ. ओके, एंड मीन्स और बॉक्सेस मीन्स डिब्बे. क्लियर? तो स्टूडेंट्स, ऑल दीज वर्ड्स, ओके, बस, ग्लास, ब्रश, वॉच, बॉक्स, ऑल दीज सिंगुलर वर्ड्स. ओके, तो सिंगुलर वर्ड है ये. तो स्टूडेंट we can see this, we can see that all these words and with and all this word and with s letter, okay, double s letter, okay, sh, ch and x. okay, तो स्टूडेंट जो हमारा बस वर्ड था इसका लास्ट लेटर एस था ना, एंड द लास्ट लेटर so of this second number word glass is double s, and the last letters of this word brush are sh, and the last letter of this word watch आर सी एच, एंड द लास्ट लेटर ऑफ दिस वर्ड बॉक्स इज एक्स. ओके, तो ये जो वर्ड थे ना हमारे
बस इसका लास्ट लेटर एस था, ग्लास का लास्ट लेटर डबल एस टे, एंड ब्रश का लास्ट लेटर एस एच टे, एंड वॉचेस का लास्ट लेटर सी एच टे, एंड बॉक्सेस का लास्ट लेटर एक्स था। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, सारे वर्ड्स के एंड में ई एस को एंड करके सिंगुलर टू प्लूरल चेंज कर लिया। ओके, सिंपल सी बात है कि जब भी हमारा कोई नाउन इन लेटर से एंड हो, एक कंडीशन दी है कि अगर इन लेटर से एंड है, एस, डबल एस, एस एच, सी एच या एक्स लेटर से एंड हो, तो हम क्या करते हैं, वर्ड के एंड में सिंपल सी बात है कि ए एस को ऐड करके सिंगुलर टू प्लूरल चेंज कर सकते हैं। सिर्फ ई एस को ऐड करना होता है और एंड कुछ भी नहीं करना होता है। क्लियर? Let's see. Third number rule. Your third number rule is nouns ending in y form their plural by dropping the y and taking ies. Okay. For example, flies, puppies, and stories. Okay. तो इट्स मीन नाउन्स में संज्ञा, एंडिंग मीन्स अंत होता है। ओके, इन मीन्स में वाई फॉर्म मीन्स वाई लेटर के साथ देयर प्लूरल्स, इट मीन उनके बहुवचन बाई मीन्स बाई ड्रॉपिंग द वाई, वाई को ड्रॉप करके, वाई को छोड़ के, एंड टेकिंग आई एस, और आई एस को लेकर बनाती है। ओके, तो स्टूडेंट्स ऐसे नाउन्स, ऐसी संज्ञाएं ओके जिनका एंड वाई लेटर से होता है, तो उनको हम प्लूरल में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, वाई को ड्रॉप करते हैं, वाई को छोड़ते हैं, और वाई के प्लेस पे हम आई ई एस को टेक करते हैं, आई ई एस को हम लेते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट लेट्स एग्जांपल, जैसे स्टूडेंट फ्लाइज इट्स मीन होते हैं मक्खियाँ, ओके, पपीज़ इट्स मीन पिल्ले, एंड स्टोरीज इट्स मीन कहानियाँ। ओके, तो स्टूडेंट्स फ्लाई पहले हमारा वर्ड था एफ एल वाई, फ्लाई मीन्स मक्खी, इट्स अ सिंगुलर वर्ड, एंड दिस वर्ड फ्लाई, एफ एल वाई फ्लाई, एंड विद वाई लेटर, so स्टूडेंट we have dropped y and add ies, then our word become flights, it's in makia. puppy होता है p o double p y, puppy means पिल्ला, okay, singular word होता है, तो स्टूडेंट्स the last letter of puppy word is y, तो स्टूडेंट drop y and add ies, then our word become puppies, it's in पिल्ले. Clear? story होता है, story means कहानी, s t or y, and the last letter of story is y, so students drop y and add ies, and then our plural form of story becomes stories, it's mean कहानियाँ. क्लियर? तो ऐसा वर्ड जिसका एंड वाई लेटर से होता है ना, वाई अक्षर से होता है, तो हम क्या करते हैं, वाई को ड्रॉप करते हैं, वाई को छोड़ते हैं और आई ई एस को ऐड कर देते हैं। ओके, तो ऐसे हम सिंगुलर टू प्लूरल चेंज कर सकते हैं। लेट्स सी 4 नंबर रूल। योर 4 नंबर रूल इज इन सम केसेस व्हेन नाउन्स एंड इन एफ और एफ ई, फॉर एग्जांपल लीफ एंड knife, the plural is formed by dropping the f or fe and adding ves, for example leaves and knives. Okay, in some cases it in means में some means कुछ cases means मामलों या परिस्थितियाँ। okay, in some cases it means कुछ मामलों में या कुछ परिस्थितियों में when nouns and in f और fe, जब संज्ञाएं जो होती है f या fe लेटर से जिनका एंड होता है, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए जैसे लीफ, LEAF, लीफ मीन्स पत्ती, वी कैन सी द लास्ट लेटर ऑफ लीफ इज f. ओके, f से f लेटर से एंड हो रहे हैं ना, एंड मीन्स और नाइफ, के नाइफ, नाइफ मीन्स चाकू, वी कैन सी दैट दिस वर्ड नाइफ एंड विथ एफी लेटर्स एंड हो रहे हैं ना, तो कुछ परिस्थितियों में, कुछ मामलों में जब संज्ञाओं का अंत नाउन्स का एंड एफ या एफी लेटर से होता है, तो द प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय ड्रॉपिंग द एफ और एफी एंड एडिंग वीईएस. ओके, तो इनको प्लूरल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं हम, तो इनको प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, एफ और एफी को ड्रॉप करते हैं, एफ या एफी को छोड़ते हैं और इनके प्लेस में हम वीईएस को ऐड कर लेते हैं. क्लियर? तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि कुछ परिस्थितियों में अगर कोई नाउन ऐसा है, कोई वर्ड ऐसा है, कोई संज्ञा ऐसी है जो एफ या एफ ई से जिसका एंड हो रहा है, तो उसे प्लूरल में चेंज करने के लिए हम एफ या एफ ई को ड्रॉप करते हैं, एफ या एफ ई को छोड़ते हैं और उसके प्लेस पे हम वी ई एस को ऐड कर लेते हैं सिंगुलर टू प्लूरल में चेंज करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल में सुधार के लिए स्टूडेंट्स आवर वर्ड वाज लीफ, हमारा वर्ड था लीफ, LEAF, लीफ मीन्स पत्ती, एंड वी कैन सी दी वर्ड the last letter of this word leaf is f. Okay, so students drop f and add ves, and then our plural form of leaf become leaves, LEAVES, leaves means pattiyan. Okay, and since our word was knife, KNIFE, knife means chaku, and we can see this word knife and with fe letters, so students drop fe and add ves, and then our plural form of knife become knives, KNIVES, it's mean chaku. Clear? Leaves and knives both are plural noun. Okay, दोनों plural noun है हमारे. Clear? So students we have read रूल्स ऑफ चेंज सिंगुलर टू प्लूरल नाउन. ओके, फर्स्ट रूल था कि सिंपल से ऐड एस को ऐड करते हैं वर्ड के एंड में और सिंगुलर टू प्लूरल चेंज करते हैं. सेकंड रूल हमारा है सिंपल कि अगर कोई हमारा वर्ड एस, एस एच या सी एच या डबल एस या एक्स लेटर से एंड हो रहा है, तो हम उस पर लास्ट में वर्ड के दिए हुए वर्ड के एंड में ई एस को ऐड करके सिंगुलर टू प्लूरल चेंज कर लेते हैं. थर्ड नंबर रूल है स्टूडेंट्स हमारा कि अगर कोई भी वर्ड, कोई भी नाउन वाई लेटर से एंड हो रहा है, तो वाई को ड्रॉप करते हैं, आई एस को ऐड करके सिंगुलर टू प्लूरल चेंज कर सकते हैं. एंड स्टूडेंट अवर 4 नंबर रूल इज दैट कि अगर स्टूडेंट कोई भी नाउन अगर हमारा एफ या एफ ई लेटर से एंड हो रहा है, तो एफ या एफ ई को ड्रॉप करेंगे, वी ई एस को हम ऐड करेंगे. क्लियर? So student we have read and we have read some rules to change singular to plural noun, and I hope you must have understood.
these four rules of change singular to pronoun. Clear? So students, today's school classwork is that complete exercise O, which is page number 21 of this chapter 5 in your English language book Cornerstone. It's your today's classwork. And students, so homework is that learn exercise O, which is page number 21 of this chapter 5 from your English language book Cornerstone. It's your today's homework. Okay. So all students, firstly complete your classwork. Complete exercise O, which is page number 21 of this chapter 5 in your English language book Cornerstone, and send me your work here. Thank you.